And Assalamu alaikum everyone. Welcome to yet another episode of Trick Friends. I'm Faiz Gnani, joined by Zoha Chisti and Umar Farooq Seema. So before we begin and talking about our next semi-final, no, not ours, the next semi-final, I think it's mandatory कि हम थोड़ी मुबारकबाद दे दें. Sir Asir Malik from our school, congratulations on getting married to Malala Yousafzai. And we always believed in you, and you have been and you have been a great role model for us throughout our journey at Paragon, and we are proud of you. Omar, would you like to wish them well? Yeah, absolutely. I wish him all the very best for his life ahead, and that's all. Okay, so now coming back towards cricket. Okay, so the thing is, Umar kind of bashed our panelist when he said that South Africa आगे आएगी. So I'm pretty sure he did not come because of that sole reason. But I would like to begin with the conspiracy theories, and I would like Zoha's take on it first. वो अफगानिस्तान और इंडिया का एक बहुत फेमस मैच हुआ था और आधा पाकिस्तान डेड श्योर है कि वो फिक्स्ड मैच था और ऑलरेडी सब कुछ हो रहा था. So what's your take on it? I don't know if it was fixed. I just think it was overall a very bad performance from Afghanistan. I mean, say it was fixed or not, but there was something going on because Rashid was getting hit. Everyone was just, getting hit, and Nabi bowled only 1 over. He got like hit for 7 and then he didn't come to bowl. So overall, I didn't get their strategy. I don't know if it was fixed because if fixed and then they still got out, so it doesn't make sense. But yeah, I mean, I don't know. I don't think it was fixed. I just think India. This was how we imagined India would perform in the World Cup, but then they didn't in the first few matches. I think India is this team, but हमने like हमें ख्याल ही नहीं रहा था कि वो ऐसी team है. So when they did perform, and I mean it was Afghanistan, that India was gonna play Afghanistan like that. हमें ये भी सोचना चाहिए. But yeah, and Yeah, that's totally valid because honestly speaking, जब हमने पहली दफा पाकिस्तान इंडिया की मैच की थी, so we expected कि 200 plus score जाएगा. But then again, Umar was dead sure that Afghanistan would do one major upset. If he considers Scotland getting bowled out for 50 or runs and that's his upset, then I wouldn't beg to differ on this. But Umar, where's the upset that you were talking about? And your take on this whole conspiracy theory and how everyone believes that the match was fixed. No, honestly, I don't think the match was fixed. I think India did play very well, and India is a very good T20 side. Uh, they play the IPL primarily in the UAE now, तो उनको पता है इस कंडीशन का सारा. एज ए टीम वो जेल नहीं कर सके, उनकी क्या क्या रीजंस थी बाहर होने की, वो तो एक डिफरेंट डिबेट है. लेकिन वो स्पेसिफिक मैच जो है, पाकिस्तानी थोड़ा सोच रहे थे कि शायद हमने 10 विकेटों से हरा दिया है तो इंडिया को सारी 10 विकेटों से हरा दें. ऐसे नहीं होता क्रिकेट में, टीम्स बेहतर भी कर लेती हैं. तो कुछ टीमों ने इम्प्रूव कर लिया और इंडिया, लेकिन बैड लक फॉर देम कि वो नहीं आ सकी. एंड इट इज आल्सो बैड फॉर द टूर्नामेंट. सब कॉन्टिनेंट में टूर्नामेंट हो रहा है और एक एशियन टीम जो है वो सेमीफाइनल में आ सकी है. ओवरऑल टूर्नामेंट के लिए भी इतनी अच्छी बात नहीं है और सारी एशियन टीम्स को सोचना पड़ेगा. अफगानिस्तान, एज फार एज अफगानिस्तान इज कंसर्न, आपने कहा कि मैंने कहा था कि एक अपसेट करेगी. मैंने बिल्कुल कहा था और मैं बिल्कुल ये होप कर रहा था कि अफगानिस्तान एक अपसेट पुल ऑफ करेगी. और अगर आप देखा जाए तो वो अपसेट उन्होंने ऑलमोस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट ही पुल ऑफ किया था जब 25 रन चाहिए थे ऑफ 10-12 वॉट बॉल्स. तो वो उनके अगेंस्ट ही आई थिंक वो सब ज्यादा बैक कर रहे थे अपने आप को. लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो गेम हम जीत गए और अफगानिस्तान वो नहीं कर सका. लेकिन अफगानिस्तान इज नाउ अ वेरी गुड साइड. एक ऐसी टीम है जिसको रिकग्नाइज करना पड़ेगा पूरी दुनिया को. और श्रीलंका और वेस्ट इंडीज जैसी टीम्स जब क्वालिफायर्स खेल रही थी तो अफगानिस्तान डायरेक्टली क्वालिफाई करके आया. तो आप अफगानिस्तान को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते. That's very true. I mean, it is sad कि India आगे नहीं है, लेकिन personally speaking, I'm very happy India आगे नहीं है. It's like
उनकी सारे गरूर टूट गए, उनकी भड़के वॉक ओवर, हम फाइनल में मिलेंगे। और भाई फाइनल में पहुंचने के लिए यू हैव टू रीच द सेमीफाइनल। सेमीफाइनल पहुंच के जीतना होता है। ये कोई मजाक थोड़ी हो रहा है कि आप आए, आपने आईपीएल स्टाइल क्रिकेट खेली, आपने स्कॉटलैंड को, फिर आप माशाल्लाह इतने बड़े वो हमारे प्लेजरिज्म टेस्ट होना चाहिए वैसे इंडिया के ऊपर। माशाल्लाह हम ये नमीबिया के ड्रेसिंग रूम में उन्होंने कहा ओहो पब्लिसिटी स्टंट, ओ माय गॉड आई हैवंट डन दिस। So next day we see the Rohit Sharma and Virat Kohli going to Scotland and telling them, और वो बिल्कुल नजर आता कि आवाजार हो रहे हैं, लेकिन कम से कम उन्होंने अच्छी चीज ही कॉपी की है हमारी। Okay, so now moving on to the next question, Zoha. So कल का मैच, if you consider it's England versus New Zealand. So what's your take on it? Do you think we're gonna see New Zealand actually live up to their expectations of being the dark horses in major ICC tournaments and take revenge for the loss in the final? Or do you think that England is going to blister, they will come out and like smash sixes all around the ground and make it almost unchaseable for New Zealand, considering, but we also need to factor in the reality that they actually lost to South Africa recently, which was a big shocker considering how good they were playing. I think with any knockout match like semis वगैरह, it's always, I think, 50-50. चलो, if you want to like do it, like stretch it a bit, 55-45 कर लें. A lot of people I think saying कि it's England's match, but I don't think so. I think New Zealand have a good chance, especially Jason Roy is injured, and at pehle time Mills injured with it. Even though Jason Roy hasn't really played a lot, but you know that still does like something to the squad that has the impact of wins. Aega ekdam. I mean, it does have an impact. He's probably gonna open as well, and I mean, he's still, you know, one of the PSL legends. I to England के आधे players बनाए हमने PSL से, but still, I mean, जेल होने में टाइम लगता है, एंड इट ओवरऑल डज समथिंग टू द स्क्वाड. ड्रेसिंग रूम में भी चेंज आता है. एंड उसके अलावा आई थिंक न्यूजीलैंड हैज बीन डूइंग वेरी वेल, फेयरली वेल. Even Pakistan wala match, I don't think it was like fairly one-sided. It was competitive. Their bowlers are doing really well. Bolt is doing very well. So I don't think it's like a one-sided match. I think with all the matches जैसे अभी तक हुए हैं, the toss is gonna play a role. If England are chasing, तब तो I think England is winning. But if New Zealand chase, so I think New Zealand have a really good, you know, chance at winning. But also England do choke a little as well. New Zealand also chokes, so okay. So coming to Umar, do you think it's going to be James Vince who's going to make it to the playing 11, or are they going to stick with Sam Billings because he has been there for quite a while and he was in the initial 15 squad as well, so he must have had some training as well. Whereas James Vince, so matlab aap naya lega. So what if they actually play with Sam Billings, promote Johnny Bairstow up the order, he opens with Josh Butler, and one down पे वो उसी तरह वो करेंगे, क्योंकि इंग्लैंड का ऐसा बैटिंग लाइन है, it's like you can literally ask anyone to play anywhere that you want. I mean, अगर तुमने देखा हो तो मोइन अली ने एक जमाने में ओपन तक किया हुआ है. So like they have the ability. Do you think it's going to be Billings who's going to play or Vince? अच्छा, पर्सनली अगर मुझे अब ये डिसीजन वो क्या लेते हैं ये तो आई थिंक तभी पता चलेगा. बट पर्सनली आई वुड गो विद सैम बिलिंग्स एट नंबर 4 एंड मैं उसको प्रमोट कर दूं बेस्टो को, क्योंकि वो दोनों इस कंडीशन को समझ चुके हैं. आप अगर देखें तो इन कंडीशंस के अंदर सबसे मेन बात ये रही है कि जिन्होंने कंडीशंस अडेप्ट की हैं उन्होंने अच्छा खेला है. तो मैं पर्सनली ये करूंगा कि बेस्टो को मैं प्रमोट कर दूंगा और बिलिंग्स को टीम में ले आऊंगा, बिकॉज ही इज बीन ट्रैवलिंग विद द टीम और उसको एक्सपीरियंस हो चुका है. सेकेंडली, मैं बिल्कुल जोहा से आई एब्सोल्युटली एग्री विद हर कि इफ न्यूजीलैंड चेज तो उनके चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि न्यूजीलैंड जो क्रिकेट खेलती है वो काफी कैलकुलेटेड सी होती है. वो कोई बहुत एग्रेसिव टीम नहीं है, उनके पास बहुत ज्यादा 6 हिटर्स नहीं है. तो वो जिस तरह की क्रिकेट खेलती है वो बहुत कैलकुलेटेड होती है, और उस तरह की कैलकुलेशन के अंदर आप ये देखते हैं कि अक्सर चेज करने में ही वो कंफर्टेबल रहती है. रिप्ले है एक वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल का,
अब देखते हैं कि हाउ डिफरेंट कैन इट बी दिस टाइम, क्योंकि अब तो सुपर ओवर के बाद आई थिंक रूल चेंज भी हो गया और अब शायद बाउंड्रीज पे ना जीत पाए इंग्लैंड। तो लेकिन होपफुली मुझे लग रहा है कि एक अच्छा मैच होगा। और कुछ कहना मुश्किल है कि कोई भी टीम बहुत क्लियरली वन साइडेड मैच नहीं हो रहा, कोई भी टीम इसके अंदर आप क्लियर फेवरेट्स पिक नहीं कर सकते। इफ न्यूजीलैंड चेज दे हैव अ फेयरली गुड चांस टू विन। Okay, that's actually quite thoroughly recognized. Matlab, if they are going to have a revenge on their final loss, I think I would actually back New Zealand considering कि वो थोड़े ना complete team लगती है। इंग्लैंड को पता नहीं क्यों दे आई स्टिल थिंक कि वो विकेट गिरेगी ना तो वो उनके उनसे रुका नहीं जाता, उनमें भी थोड़ा ना वो अफगानिस्तान टाइप फील है, या छक्का या डॉट पे विकेट। ठीक है, और ये चीज आई एम नॉट टू श्योर कि तुम लोग इस पे एग्री करते हो, लेकिन आई हैवंट रियली सीन देम डिफेंड द बॉल। सो व्हाट इफ इस सोची मिचेल सैंटनर उनके रन रोक रहे हैं एंड रादर देन एक्चुअली playing a Babar or Rizwan type of inning where you actually like pierce where you intersect fielders, get those tricky singles or doubles. So वो अगर फंस जाएंगे so it's going to be really interesting कि वो छक्का मारते हुए कैच आउट, पता नहीं न्यूजीलैंड की फील्डिंग ही पता नहीं क्या है। the other day वो राशिद खान ने शॉट मारी और वो बाउंड्री से ऐसे वापस आई, मैं तो कहा भाई इनके खिलाफ तो 20 रन एक्स्ट्रा करने चाहिए, क्योंकि उन्होंने वैसे ही 15-20 जो है ना अपने फील्डिंग से सेव कर चुके होते। अच्छा, मूविंग ऑन, आई पर्सनली थिंक थोड़ा सा पाकिस्तान में बात हो जानी चाहिए। बिल्कुल पाकिस्तान पे कर लेते हैं, लेकिन आपके इसी पॉइंट के ऊपर मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करते हुए कि न्यूजीलैंड की फील्डिंग आई थिंक टूर्नामेंट में सबसे अच्छी रही है। और इंग्लैंड, लेकिन इंग्लैंड को भी आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इंग्लैंड का जो आपने कहा कि वो हर प्लेयर आके हिट मारता है, एंड दैट इज वेरी ट्रू, बट दैट इज द काइंड ऑफ क्रिकेट दे बीन प्लेइंग फॉर द पास्ट 3-4 years एंड इट इज वर्क फॉर देम। और अगर आप ये देखें कि वो उन्होंने हर बंदे को एक रोल असाइन किया और ज्यादातर का रोल यही है कि भाई तुमने बस डोंट वरी अबाउट योर विकेट, बस जस्ट गो आउट देयर एंड परफॉर्म वेल। तो वो इतना वो पे विकेट का उन पे प्रेशर नहीं होता। तो और लेकिन इट कैन पे ऑफ, क्योंकि आप ये देखें कि इंग्लैंड की बैटिंग जो है वो नंबर 9-10 तक जाती है। तो अब उसमें जो आदिल रशीद भी जो है वो अपनी चीकी शॉट्स खेल लेता है। तो हैविंग सेड दैट आई थिंक उनको इतना फर्क नहीं पड़ता, T20 के अंदर इतनी विकेट सेव करने का कोई फायदा नहीं होता। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज उनकी एग्रेसिव अप्रोच जो है वो बैकफायर कर सकती है। तो ठीक है, so it's basically going to be the calculated Kiwis versus the explosive British। नहीं, ब्रिटिश कहना गलत है क्योंकि अब तो काफी उनकी भी टीम्स आती हैं। अच्छा, so moving on to Pakistan versus Australia. Turns out my instructor has turned down my request कि class cancel या postpone कर दें, and I have a class from 6:30 to 8:30 p.m. Why cannot instructors understand कि पाकिस्तान 11 साल बाद वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आए? ठीक है, so with my rant being done, I would like to ask Zoha. Zoha, what's the first thought that comes to your mind when you talk about Pakistan versus Australia? Please don't say Michael Hussey. No, I'm very scared, but also like PTSD तो है ही, but I mean इतना भी नहीं है। We won the series in 2018. It was 2018 I think, जो 3-0 हम जीते थे और UAE में जीते थे। मैं तो वो याद रख रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग बियॉन्ड 2016। मेरी मेमोरी उससे पहले वैनिश हो गई है। I am thinking after 2016, and I mean, so you're optimistic also, for a perfect birthday gift for yourself, huh? oh my god, it's either gonna be the worst birthday or the best birthday ever. I am scared. Okay, so she's super optimistic. Umar, your smile suggests that you're also optimistic. But do you think that Australia is to be treated lightly, considering that they have, apart from the England match, they have dominated the group stage? I mean, they haven't been at the center of everyone's attention, but they have been fairly impressive, and credit is there for them. नहीं, बिल्कुल ठीक है। इसकी इन डेप्थ एनालिसिस तो हम कल करेंगे, बट मैं आपको मोटा मोटा ये बता देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया को हम लाइटली ले ही नहीं सकते, बिकॉज हमारे प्लेयर्स के माइंड में अंटिल वी वर एब्सोल्युटली डन विद द गेम एंड वी वन, हम ये नहीं कुछ भी ऑस्ट्रेलिया को हम इजी नहीं कर ले सकते, बिकॉज हमें याद है कि 2010 में गालबन उन्होंने हमारे साथ क्या किया था। माइक हसी ने जो
लास्ट ओवर के अंदर आके मतलब ही टर्न्ड द गेम ऑन इट्स हेड, तो वो हमें याद है। और उसकी वजह से जाहिर है प्लेयर्स के ऊपर भी एक प्रेशर होता है। शोएब मलिक को भी बिल्कुल याद होगा, यंग था उस वक्त, अभी भी यंग है, लेकिन जाहिर है तो वो एक प्रेशर जो है वो रहता है। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लग रहा है कि द मोमेंटम द पाकिस्तान हैज राइट नाउ, हमें एक अपर हैंड बिल्कुल है। यूएई है, यूएई में हमने रीसेंट सीरीज भी उनको हराई है, टेस्ट मैचेस में भी हमने उन्हें डोमिनेट किया है, T20s के अंदर 3-0 आया है, जिस तरह जोया ने बताया आपको। तो हमारी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। और इवन दो के एक इंटरेस्टिंग स्टैट कोई बता रहा था कि हमने ऑस्ट्रेलिया को कभी किसी वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैच में नहीं हराया, लेकिन वैसे वर्ल्ड कप्स में हमारी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ठीक रही है परफॉर्मेंस। तो आई डोंट थिंक इतना हमारे ऊपर कोई आउट ऑफ द वे जाके वो होगा, लेकिन एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर जो है वो बिल्कुल है, और उसको सही तरह से डील करना पड़ेगा। रिजवान और बाबर को थोड़ी सी अपनी गेम अप करनी पड़ेगी, क्योंकि हर दफा आपको शोएब मलिक ये फिनिश नहीं देगा, तो थोड़ा सा आपको जो है ना वो पावर प्ले के अंदर ज्यादा रन्स करना। शोएब मलिक के मेंशन से मुझे याद आया, पूरी अवाम माशाल्लाह दुआओं पे फंसी हुई है। मैं खुद आज मस्जिद गया हूँ नमाज पढ़ने, वैसे साइड पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। एंड आई गॉट होम एंड नजर आ रहा है शोएब मलिक अपलोडेड अ फोटो, ठीक है, हेलो मैगजीन की कवर विद हानिया। आई एम लाइक यार पूरी कौम फंसी पड़ी है, तुम बैठे ये अपलोड कर रहे हो। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, ये आपकी चॉइस है कर। इसमें जेलस होने की कोई बात नहीं है फाइज, आपका भी टाइम आएगा, आप ऐसे ही जेलस होते रहते हैं। लेकिन मुझे याद है कि जब पूरा पाकिस्तान शोएब मलिक के खिलाफ था, और ये आई काफी दफा रिमेम्बर हुआ। आई सेंट इट टू यू, आई एम लाइक पूरा पाकिस्तान उसके पीछे बैक कर, और ये बैठा ये आई थिंक आयशा मेरे साथ फोटो शूट था। आई एम लाइक यार ये क्या मैच इस बात से खेल रहे हैं। नहीं, एक टाइम था कि पूरा पाकिस्तान शोएब मलिक के खिलाफ था, और वो उस वक्त सियालकोट स्टाइलिंग से कैप्टन था, और उसके बाद भी काफी इंस्टेंसेस आए, जैसे इस वर्ल्ड कप की सिलेक्शन में भी। और दो लोग आई थिंक पूरे पाकिस्तान में उसे सपोर्ट कर रहे थे, एक मैं था और एक फायज था। हम दोनों शुरू से शोएब मलिक को, और जो वो जिस तरह क्रिकेट खेलता है उसको सपोर्ट करते रहे। और हर बंदा उसके, एक टाइम था कि लोग कहते यार ये खत्म हो चुका है, और ये बहुत पहले की बात है, 2014 की आई थिंक बात है। लेकिन शोएब मलिक बार बार ये दिखाता है कि एक्सपीरियंस जो है उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और ये चीज जो है आपको सिर्फ शोएब मलिक की प्रेजेंस जो है वो सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस बैट से उससे नहीं करती, बल्कि शोएब मलिक और हफीज जैसे प्लेयर्स जो हैं वो बाबर को एज ए कैप्टन भी बेहतर कैप्टनसी करने में भी हेल्प करते हैं। I still remember how Asif Ali was recalling कि मैं आया and Shoaib Malik was like tension in any match अपना and all. You know, it's like having a mentor on the pitch. He has more age in terms of being as a cricketer than even most of the other teammates that we have, and it's quite fascinating how he shares his experience. And I got to know from another person from an interview कि he is the jolliest of them all and cracks jokes and और कभी टेंशन में नहीं आता है, ठीक है। जोहा, इफ आई मीन फ्रैंकली ऑनेस्ट ना, मुझे इंडिया से ज्यादा हारने के ना ऑस्ट्रेलिया के से वर्ल्ड कप में हारने के ज्यादा इंस्टेंसेस याद है। आई मीन वो वहाब रियाज की स्पेशल बॉल जब स्टीवन स्मिथ वाइड की लाइन से बाहर निकला, वो भी हमारे थे। फिर एंड में वो जो सरफराज अहमद आखिरी बॉल पे रन आउट, आखिरी विकेट से वो रन आउट हो गए। फिर वहाब रियाज वर्सेस वॉटसन था जिसमें वो राहत अली ने कैच ड्रॉप किया। फिर माइकल हसीन मुझे याद आता है। इट्स क्वाइट डॉन्टिंग, लेकिन कर्स तो हमने ब्रेक किया है ना पाकिस्तान इंडिया वाला भी, so why can't we just like change it one day? So should we be excited for the final on Sunday, और अभी दुआएं बड़ी जोर जोर से हमें मांगनी पड़ेंगी? दुआएं मांगते रहे और एक्साइटेड भी होते हैं। मैं तो थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की टीम भी हमें सोच रही है कि वो अब टीम नहीं है जो पहले थी। लाइक दे डोंट हैव शेन वॉटसन, दे डोंट हैव लाइक उस तरह से इतनी लाइक पावर हिटिंग उनकी भी नहीं है। एंड उनका भी रिलेटिवली न्यू स्क्वाड है, हमारा भी रिलेटिवली न्यू स्क्वाड है। इट्स अ क्लीन स्लेट एंड होपफुली वी रीसेटिंग जैसे हमने इंडिया के साथ रीसेट किए रिकॉर्ड्स, वी रीसेटिंग Australian records as well. Fingers crossed. I'm hopeful. I have no other option but to be when I'm going to lose my mind. But hopefully, yeah. I'm literally blocking my weekend off for the final. मैंने अपने आप को mentally prepare कर लिया है, इंशाल्लाह। I still remember how spades were like कि Saturday को हम कोई event करा रहे थे ना, हमने नहीं, Saturday is only meant for दुआ, Sunday को मैच उन्होंने खेलना है, लेकिन यहाँ पर 23 करोड़ जो लोग हैं वो टीवी के पीछे बैठ के वो भी खेल रहे होंगे साथ।
Acha. With that being said, I think that should wrap up our episode. It was on a lighter note because it's basically the first semi-final tomorrow, and we just wanted to have like a brief sort of session. Our main analysis. प्रेडिक्शंस तो ले लें भाई, आप सेमीफाइनल की प्रेडिक्शंस दे लें होस्ट साहब। यार हमारी प्रेडिक्शंस पहले कब ठीक हुई? तुम लोग तो इंडिया को भी सेमीफाइनल में पहुंचा बैठे थे। अच्छा, ठीक है, तो प्रेडिक्शन वहां पे साउथ हमारी अफ्रीका भी पहुंचे प्रेडिक्शन जो आप ऑलरेडी। कह रहे हैं, मैं बता ऑलरेडी एक सेकंड। ऑलरेडी वो साउथ वो अफ्रीका वाला बॉय हार ही रहा है। मुस्तफीज जो भाग गया है ना, मुस्तफीज और मोहित जो भाग गए हैं, उनकी प्रेडिक्शंस गलत हुई और सारी की सारी गलत हुई। इतनी प्रेडिक्शंस गलत हुई कि वो शो में ही नहीं आते। तो उनको आप समझाएं, उनसे कहें कि यार कोई बात नहीं, प्रेडिक्शन सबकी गलत हो जाती है उम्र के अलावा, बाकी भी तो आ गए हैं ना, तो आप आ जाया करें। तो as you can clearly see, Umar नहीं does यार, not प्रेडिक्शंस आप ले लें। does not ask me for anything। वो जब उसका दिल करता है वो बोलता है। उमर आप प्लीज, उमर आप बताएं मैम अपनी प्रेडिक्शन, हम वेट कर रहे हैं आपके लिए। नहीं, मैं एंड में बताऊंगा, अच्छा जोहा, मैं वरना आपको आप पहले लोग कॉपी कर लोगे मजा। जोहा मैं आपको पहले कहना चाहता हूँ कि अगर गलत भी हो जाए ना, आपने आगे एपिसोड के लिए आना है। ये उमर बोली है, इसकी बात गौर से नहीं सुननी। तो अपनी प्रेडिक्शन बताएं। अच्छा, मेरी prediction, I kind of want New Zealand to win, but I am gonna side with England only because of statistics. But I think both have equal chance. But England purely because of their batting. They are like पहले भी जैसे उमर ने कहा, they're 9 down batting है, which is gonna help. So yeah, England to win and I think any of their batsmen actually, Butler or Bairstow hasn't really like done a वो shine through moment abhi, so he could be the one, but any of their top order batsmen. Okay. Okay, so I'll be very honest. My mind says England, लेकिन मुझे अभी भी याद है उन्होंने कितना बुरा हमारे साथ किया था, and my heart says you should never give a second chance to people. So I'm going to say कि इंग्लैंड हारे, इंशाल्लाह हारे, इतना बुरा हारे कि उनको खुद समझना है क्या हुई है। ठीक है, क्या and बुरा किया था, समझाएं भी तो सही, आपको कोई पर्सनल लग रहा है? कोई ब्रिटिश गर्लफ्रेंड थी आपकी? एक्सक्यूज मी, ये मादर सीम टाइप सीन नहीं है। अच्छा, मेरा केस सिंपल है। आई गॉट वेरी हर्ट बाय द फैक्ट कि उन्होंने बगैर किसी वजह के हमारा टूर कैंसिल किया, एंड द प्राइम मिनिस्टर वाज डेड श्योर कि कुछ हमें जाना चाहिए था, एंड पाकिस्तान एज अ होल वाज सपोर्टिंग ब्रिटिश बाय द ब्रिटिश द इंग्लिश पीपल। वो तो न्यूजीलैंड ने भी किया था, वो तो दोनों ने किया, वो तो नहीं, इक्वली बैड है, बल्कि न्यूजीलैंड ने सेट किया ये प्रेसिडेंट। लेसर इवन उन्होंने तो चलो अगर ना सिक्योरिटी था, देयर लाइक हमारा वर्कलोड मैनेज नहीं होगा यार। यू न्यू दैट 4 months ago, it's not as if एकदम से आसमान से वही आई जी के पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज खेलना पहुंचना आपने। देखो, they just announced that we're gonna play 2 extra matches और उनका कौन ECB some official is here. वो होता ऊपर है से ना। Australia is announcing tours. They're trying to butter us up and के मतलब go easy on us. वो होता है ना, जो पता हो वो मार पड़ने वाली है। हाँ हाँ, इसको लेके जाओ, हालात बेहतर करो, आपस में सालसी करा लो, वरना बहुत बुरा होगा। वो वाला सीन मुझे लग रहा है। Omar is judging me because he knows I love controversies, and he's like, "फाइज तुम फिर judgmental हो रहे हो।" लेकिन I want New Zealand to win, and I hope that they do win। और हमने न्यूजीलैंड को से हराया था, शायद हम वर्ल्ड कप फाइनल में उनको हरा पाए। उमर, अब आप जरा बोलिएगा। Yeah, I think England clearly are the favorites, of course. New Zealand अगर जीते तो that would be while chasing. अगर वो chase कर पाए तो वो जीत सकेंगे। वो भी अगर एक moderate total बनता है, which is between 150 and 160, तो इंग्लैंड फेवरेट्स हैं। और मुझे लग रहा है कि प्लेयर्स टू वॉच आउट जो इंग्लिश साइड के अंदर होंगे, वो ऑब्वियसली बटलर को आप गेम से कभी भी नहीं निकाल सकते, लेकिन प्लेयर्स टू वॉच आउट आदिल रशीद होगा और मोइन अली होगा। इन दोनों को बहुत गौर से, बिकॉज मोइन अली प्लेज स्पिन रियली वेल, ही अंडरस्टैंड्स द कंडीशन, एंड जो आदिल रशीद है वो इज बिन ऑन सॉन्ग, उसकी 5 मैचेस में आई थिंक 8-9 विकेट्स हैं और अच्छी बॉलिंग कर रहा है, इकोनॉमी बहुत अच्छी है। तो नाउ ही रियली बोल्स एनी बैड बॉल्स। और हालांकि लेग स्पिनर से आप एक्सपेक्ट करते हो कि फुल टॉस कर देगा 2-3 बॉलों के बाद, लेकिन आदिल रशीद जो बहुत डिसिप्लिन हो चुका है, तो ये मुझे लग रहा है। और इंग्लैंड के साथ आप फाइनल की तैयारी करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
Acha, with that note, I think we have to conclude today's episode. And once again, happy शादी सर आसिर मलिक. आपका लम्ब से भी connection है और आपका Paragon से भी connection है. So we hope कि आप you get to enjoy the rest of your life, and we wish you many congratulations from Faiz and Umar Chima. Zoha also, but Umar and I know her. No, Sure. thanks. So Allah Hafiz.